देखो भाई, सेपरेशन टेक्निक के ऊपर हमारा ये यूनिट चल रहा है, तुम लोगों को पता है हमने बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। क्राइटेरियन बी, क्राइटेरियन सी ही हमारे इस यूनिट में एसेस हो रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके रिलेटेड सारा कुछ देख लिया था। जो हमारे पुराने सेपरेशन टेक्निक्स थे, जैसे हैंड पिकिंग था, सीविंग था, फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन था, सेपरेटिंग फनल था, सेंट्रीफ्यूगेशन था, एक मैग्नेटिक सेपरेशन भी छोटा सा टॉपिक आया था, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। यानी कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करना है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हम लोग ये सारी चीजें तो जान चुके हैं। हमारे पास कुछ और अभी और सेपरेशन टेक्निक्स है जो थोड़े हैवी है। अब देखो, मैंने तुमको हमेशा से सही बात बताई है, अब जो टॉपिक्स है वो इतने सिंपल नहीं है, थोड़े से अच्छे लेवल के टॉपिक्स हैं सेपरेशन टेक्निक में। अब जो हमारे पास बचता है, क्रिस्टलाइजेशन हुआ या क्रोमेटोग्राफी हुआ या फिर डिस्टिलेशन हुआ, तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, इनके सेटअप ही आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन तो सिंपल था, मशीन थी, गोल गोल घुमा दिया, हो गया। अब जो सेटअप समझोगे तुम लोग, वो सेटअप ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। तो ध्यान देना पड़ेगा, आज सिर्फ 3-4 ही टॉपिक करना है अपने को, लेकिन एकदम ध्यान से करना। और ये अगर ये साइड पे आवाज होगी ना, मैं देखूंगा नहीं, मैं ये तुम चारों को बाहर भेज दूंगा, लूनिया स्पेशली तू। चलो अब देखो, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ना क्रिस्टल्स के बारे में समझना है। हम लोग को सबसे पहले आगे क्रिस्टल्स के बारे में समझना है। चलो सबसे पहले क्रिस्टल्स के बारे में समझना है। यहाँ पे इवेपोरेशन भी जो है कनेक्टेड रहेगा, तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्रिस्टलाइजेशन का छोटा सा वीडियो देखना पड़ेगा। Today on Sci Guys, we're making rock candy. Welcome to Sci Guys. I'm Ryan. And I'm Teresa, and today we're making rock candy. Let's rock out. Wow. Different kind of rock, but that's okay. Wow. This episode is a viewer recommended episode. Thank you to these viewers for the suggestion. Rock candy is made from crystallized sugar. Crystallization is the process of forming a solid crystalline precipitate from a solution or melted substance. The equipment and ingredients you're going to need for this episode includes a whole lot of sugar, A pot, a tall glass, a clip or clothespin wide enough to cover the top of the glass, wood skewers or popsicle sticks, and optionally, flavoring. The safety equipment you're going to need for this experiment include goggles, thermal gloves, and an apron or lab coat to protect from spills and splashes. Also, because the sugar solution is extremely hot, adult supervision is required. The first step in our experiment is to make a sugar solution to put on the stove. Add 1 cup of water to your pot. Then 3 cups of sugar. Mix them all together until they're thoroughly mixed. Next, take one of your skewers and dip it in some water, and then roll it in sugar. This will create the seed crystals for a rock candy. Once it's coated, set it aside until it's dry. While you wait for your sticks to dry, place the pot that contains the solution onto the stove and turn the stove up to high. Continue to stir your solution as it warms up. Once your solution begins to boil, stir it rapidly until all the sugar has been mixed into the solution. Once all your sugar is mixed in, this is a great time to add any flavoring or coloring. Once you're done mixing in all your sugar, colors, and flavors, remove from the burner. The next step in our experiment is take your boiling solution and pour it into the glass in which you're going to grow your crystals. Let the solution cool for 10 minutes, and then place the sugar-coated stick into the middle of the glass and hold it in place with the clip. Leave your solution in a warm, dry place to cool. As it cools, crystals will begin to grow on the stick. The process of growing these crystals can take a couple of days up to a couple of weeks. Check your crystals daily and make sure that the crystals growing on the stick don't come in contact with any crystals growing on the sides or bottom of the glass. If you notice they're growing close together, reposition the stick so it's further away from other crystals. Once your crystals are done growing, use a knife to crack the top shell of your solution. Gently remove your crystals from the solution and hang them in a new glass using the clip to hold it in place to drip and dry. Once your crystals have finished dripping and drying, you'll have a delicious, crystalline, sugary snack. During the filming of this episode, we tried using Kool-Aid for flavoring and coloring. We had limited success and the crystals grew quite small. We think the sucralose and other additives inhibited the growth of the crystals on the sticks.
When we repeated this experiment using food coloring and liquid flavoring extracts, we had greater success in growing larger crystals. To get a lighter color, we used 10 to 15 drops of food coloring, and for the darker color, we used around 50 to 60 drops. Let's look at this experiment a little closer. All liquids have a set solubility to a specific substance at room temperature. Some liquids have high solubilities, while others have low solubilities. Solubility refers to the amount of a substance, called the solute, that can be dissolved into a liquid, known as the solvent. In most cases, as the temperature of a liquid solvent increases, the solubility also increases. The water experiment starts off at room temperature, and at room temperature, the solubility of the water isn't high enough to dissolve all the sugar that we added into the pot. When we place the pot on the stovetop, the heating element raises the temperature of the water. As the temperature of the water increases, so does its solubility. And eventually, once the water is at boiling temperature, around 100 degrees Celsius, the water solubility is high enough that we're able to dissolve all the sugar into the water. Since we're able to dissolve much more sugar into the water than what can normally be dissolved at room temperature, we're creating a supersaturated solution. Supersaturated solutions are solutions that have a higher amount of solute dissolved into them than can be dissolved under normal conditions. When we leave our solution to cool with a sugar-coated stick in our solution, the temperature of the solution slowly drops back to room temperature. As the temperature drops, the maximum solubility of the water drops as well. This causes our solution to release sugar molecules, and these molecules form a solid crystalline precipitate. As our solution gets cooler and cooler, it releases more and more sugar molecules. The thing about sugar molecules is that they would prefer to attach to an existing sugar molecule or crystal formation rather than start a new crystal formation. This is where the sugar-coated wood stick comes into play. The sugar on the wood stick attracts the sugar being released from our solution, and they attach together, causing the crystals to grow larger. The sugar on the stick is known as seed crystals. The crystals on our stick will grow larger and larger as more and more sugar is released from the solution. This process is known as crystallization. The shape of the crystals is specific to the substance. Different substances, like alum or salt, will create crystal formations of different shapes. To learn about the crystallization of alum and what shape it grows into, watch our earlier video on growing alum crystals. That's it for Rock Candy. Thanks for watching. And if you enjoyed this episode, help support our next video. देखो भाई, बातें बहुत सारी इन लोगों ने अच्छी बोली। सबसे पहले तो इन लोगों ने सॉल्युबिलिटी का मतलब तुम लोगों को समझाया। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ तुम्हारे लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अलग अलग तरीके के जो लिक्विड होते हैं ना, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो भी अलग अलग होती है। समझ लो हमारे पास 3 तरीके के लिक्विड है ना। हम लोग एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं, समझो। तीन लिक्विड है, हाँ। एक को हम बोल देते हैं ए, एक को हम बोल देते हैं बी, एक को हम बोल देते हैं सी। अब मैं डाल रहा हूँ शुगर, इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से मैं काउंट कर पा रहा हूँ कि भाई कितना शुगर जो है वो इसमें डिसॉल्व हो पा रहा है, या फिर इजी भाषा में बोलूँ तो कितना शुगर घुल रहा है। घुलना समझते हो ना, मिल कितना जा रहा है, घुल कितना जा रहा है, डिसॉल्व कितना हो जा रहा है। तो मैंने ऐसे काउंटिंग किया, देखा भाई यहाँ पे 500 शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। 500 शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसॉल्व हुए, यहाँ पे 600 शुगर के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए, और यहाँ पे 450 शुगर के मॉलिक्यूल डिसॉल्व। सर मॉलिक्यूल काउंट थोड़ी कर। अरे मैंने बोला ना, मैंने कुछ करके काउंट कर लिया। तो एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल समझाने के लिए तुम लोगों को दिया मैंने। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? बी की। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? बी की, यानी 600। सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है कि सॉल्वेंट, तुम लोगों को सॉल्यूट सॉल्वेंट पता होगा अच्छे से। जैसे अगर मैं शुगर डाल रहा हूँ पानी में, तो शुगर इज द सॉल्यूट। जो मिक्स हो रहा है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। और जिसमें मिक्स हो रहा है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। जैसे पानी, तो वाटर तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। तो कहानी क्या है यहाँ पे कि हमने देखा कि भाई इस लिक्विड में 500 ही शुगर मॉलिक्यूल गए, इसमें 600 गए, इसमें तो सिर्फ 450 गए। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? इसकी। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे अच्छा मतलब यही है कि कितना सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो इसकी सॉल्युबिलिटी है। इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी मॉडरेट है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब तो तुम लोग समझे, सॉल्युबिलिटी का मतलब तो तुम लोग समझे। अब मैं तुम्हारे साथ एक एक्स्ट्रा बात करता हूँ। हमारे पास सॉल्यूशंस के
तीन तरह के टाइप और होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सॉल्यूशन के ऐसे तो तुमने दो टाइप पढ़े, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ऐसा तुम लोगों ने मिक्सचर वगैरह में पढ़ा था, होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, ऐसा तुमने समझा था। सबका जो कैटेगराइज हम करते हैं वो अलग अलग बेसिस पे करते हैं। जैसे अगर सॉल्यूशन की कैटेगरी में बना ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, के सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सॉल्यूशन की कैटेगरी बनाओ तो तीन कैटेगरी आती है। एक आता है सैचुरेटेड, एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के तीन टाइप है हमारे सॉल्युबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि इस वाले सेपरेशन टेक्निक को समझने के लिए हमें बहुत कुछ इधर उधर की बातें समझनी पड़ रही है। उसके बिना हम लोग सेपरेशन टेक्निक अब आगे की समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल है सब कुछ। तो एक हमारे पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हर एक का फर्क एक ही एग्जांपल से समझ आ जाएगा अगर ध्यान से सुनते हो तो। एक लिक्विड है, उसकी कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट जो है, वो 500 है। मतलब उस लिक्विड के अंदर, उस समझ लो उस 1 लीटर के लिक्विड के अंदर तुम कितने सॉल्यूट डाल सकते हो? 500 सॉल्यूट डाल सकते हो। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सॉल्यूट को गिनना ऐसे बहुत मुश्किल है, बट हमको एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि उस लिक्विड के अंदर कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल तुम डाल सकते हो? 500 मॉलिक्यूल डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे तुमको नंबर लिख के देता हूँ, मेरे हिसाब से आधा कंसेप्ट तो तुमको यहाँ पे ही समझ आ जाएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 500 सॉल्यूट है, अनसैचुरेटेड में 300 है, सुपर सैचुरेटेड में 700 है। तो मुझे लगता है आधा कंसेप्ट तो समझ आई होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें सॉल्यूट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक चला गया, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से चला गया है, अब उससे ज्यादा कुछ भी मिक्स नहीं हो सकता। अब उससे ज्यादा कुछ भी मिक्स नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कि जहां पे अभी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं आई है, अभी तुम और भी डाल सकते हो, और भी चीनी उसमें डाल सकते हो। और अगर तुमने मैक्सिमम कैपेसिटी आने के बावजूद भी अगर तुम चीनी डालते जा रहे हो, सॉल्यूट डालते जा रहे हो, यानी ऐसा केस, तो दिस इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि एक लिमिट होती है कोई भी चीज की, कि अगर पानी में नमक मिलाना है तो अनलिमिटेड नमक डाल सकता हूँ क्या? नहीं, एक लिमिट आएगी, एक उसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा। क्या कहलाते हैं उसको? सैचुरेशन पॉइंट। एक लिमिट आती है, ये जो कैपेसिटी है या ये लिमिट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना? टेम्परेचर की बात भी हम जल्दी करेंगे, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सैचुरेटेड में क्या होता है कि भाई जितना कैपेसिटी उतना चला गया, अनसैचुरेटेड में अभी भी हम सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, और सुपर सैचुरेटेड में तो बहुत ज्यादा सॉल्यूट हो गया, इतना ज्यादा सॉल्यूट हो गया कि घुल मिल ही नहीं रहा। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, सेपरेशन टेक्निक में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन से पहले तुमको क्रिस्टल्स का मतलब समझना पड़ेगा। क्रिस्टल समझते हो तुम लोग? हाँ। जो चमकती चीजें दिखती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल्स कहलाती है। जैसे यहाँ पे शुगर का क्रिस्टल था, उन्होंने बोला था कि उनके ही किसी वीडियो में एलम का क्रिस्टल है, राइट? तो क्रिस्टल्स किसको बोलते हैं? सॉल्ट का क्रिस्टल की बात की थी उन लोगों ने। तो क्रिस्टल्स यानी चमकती हुई चीज। और एक चीज हमने कॉमन देखी, क्रिस्टल सॉलिड दिख रहे थे। जो क्रिस्टल्स दिख रहे थे वो क्या दिख रहे थे? सॉलिड दिख रहे थे। तो यहाँ पे कहानी क्या है ना, यहाँ पे कहानी क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड क्रिस्टल्स को हमारे लिक्विड से सेपरेट कर देते हैं। हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स को लिक्विड से क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि अगर शुगर और पानी मिला हुआ है, शुगर अलग करना है, विच इज द बेस्ट मेथड? क्रिस्टलाइजेशन। अच्छी मेथड सबसे कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन, कि आप उससे क्रिस्टल्स अलग कर सकते हो। उसके प्रोसीजर्स होते हैं, हम समझेंगे उसको, लेकिन ये इसका एक ओवरव्यू आइडिया था। अभी हम लोगों को टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखना है वीडियो, उसके बाद हम लोग जो है डिटेल में टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वो समझेंगे। सर ये खा सकते हैं क्या चीज? ये हाँ, ये तो खा सकता है, अगर जो फ्लेवर ऐड किया है वो एडिबल है। Science. This video, let's take a look at saturated, ध्यान देना भाई। unsaturated, and supersaturated solutions. Let's take a solvent like water and mix in salt. At a given temperature, water can only dissolve so much salt. You can look these up or use a solubility curve. When water is at 90 degrees Celsius,
It can dissolve 40 grams of salt in 100 grams of water. The water is the solvent and the salt is the solute. Remember, the solute is what is being dissolved. With an unsaturated solution, less solute than the solution is capable of dissolving is mixed in. Solutes in an unsaturated solution dissolve completely. Using salt as the example, if we mix in 20 grams at 90 degrees, it will be unsaturated and all the salt will be dissolved. With a saturated solution, there is so much solute present that if you were to add any more, it will not dissolve. समझे? सैचुरेटेड में इतना सॉल्ट प्रेजेंट है कि अब और डालने पे नहीं मिक्स होगा, अब मिक्स नहीं होगा, नहीं लिमिट अचीव हो गई है भाई, जो भी उसका सैचुरेशन पॉइंट है वो अचीव। In this example, it will be 40 grams of salt at 90 degrees with 100 grams of water. And then supersaturated contains more than the maximum amount of dissolved solute and the solvent is able to dissolve at a given temperature. In this example, if you mix in 50 grams of salt, the extra salt will sink to the bottom of the container. Hope that was helpful and thanks for watching. क्लियर हुआ? सर वो सुपर सैचुरेटेड में वो थोड़ा मिक्स नहीं होता, जो जो नहीं वो अलग से ले जाएगा, सर वो नीचे सैचुरेटेड में अगर और डालते हैं तो वो उतना ही नहीं वो नहीं होगा कि पूरा नहीं सर होगा। अगर नहीं से उतना ही नहीं होगा जो और नहीं गया, है ना? तो ये फ्लो होता है। नॉर्मली कोई भी लिक्विड सबसे पहले अनसैचुरेटेड होता है, फिर उसमें सॉल्यूट डालो 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 डालो, एक पॉइंट आता है कि वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड बन जाता है। अगर स्टिल तुम और डाल रहे हो तो क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड बनेगा। तो नॉर्मली कोई भी लिक्विड पहले क्या होता है, अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी भी और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम अभी तक आया नहीं है। अब तुम डालते जा रहे हो तो एक स्टेज आएगा कि भाई अब और डिसॉल्व नहीं हो सकता सॉल्यूट, तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। एंड देन उसके बाद क्या आ जाता है, सुपर सैचुरेटेड आ जाता है, जिसमें क्रिस्टल्स बनते देखने मिल सकते हैं कि भाई नीचे नीचे जो है क्रिस्टल्स मिलने देखने मिल सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, है ना? प्रिंसिपल क्या है? The principle of crystallization is based on limited solubility of a solute in a solvent at certain temperature and pressure। देखो टेम्परेचर की बात तो हमको करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे साइंस के पुराने यूनिट में जाना पड़ेगा, जो हम लोगों का सेकेंड यूनिट था केमिस्ट्री के ऊपर, जहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी एंड ये सारे टर्म समझे थे। तुमको अच्छे से पता है कि लिक्विड के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस है या नहीं है? ये सारी बातें अगर तुमको याद नहीं आ रही हो तो मैं तुमको याद दिलाता हूँ कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल से बना हुआ है। उन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। हमने देखा था गैस में ये स्पेस सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में ये स्पेस थोड़ी कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। तो हर लिक्विड के पास क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। जब तुम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, जब तुम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो वो सॉल्यूट कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है क्या? वो सॉल्यूट गायब हो जाता है? नहीं, वो उसी इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाता है। वो क्या हो जाता है, उसी इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाता है। देखो देखो कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कैसे क्लोजली पैक्ड है। सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, ये हमने किया है, ये तुमको याद नहीं आ रहा होगा बट ये हमने किया है कि दिवाली से पहले का यूनिट था यहाँ कि सॉलिड के पास जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। देखो जगह एकदम कम है और लिक्विड में जगह ज्यादा है। देखो इतनी सारी जगह, और गैसेस में तो भाई इतनी जगह है। तो जब भी तुम लिक्विड में कोई चीज को डालते हो, सॉल्यूट को डालते हो, तो वो सॉल्यूट कहाँ चला जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो कहाँ चला जाता है, इन्हीं इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाता है। क्या होता है बोलो, इन्हीं इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाता है। जब तक इंटरमोलिकुलर स्पेस सारी की सारी भरी नहीं है, सुनना मेरी बात को, जब तक सारी की सारी इंटरमोलिकुलर स्पेस भरी नहीं है, वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड, है ना। और अगर सारी इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गई, सारी इंटरमोलिकुलर स्पेस भर गई, तो बोलो क्या कहलाएगा, फिर वो सैचुरेटेड। समझे, ऐसे ही पूरा बन जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। अगर तुम उसके बाद भी सॉल्यूट डालते हो, तुम मुझे बताओ इंटरमोलिकुलर स्पेस बची है क्या? नहीं। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस बची नहीं है तो डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा।
तो वो क्या होता है, लिक्विड में ही रह जाता है, नीचे जम जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल Supersaturated. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बोलेंगे। और वही जो नीचे जम जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स, कि वो क्या बनाने लग जाता है, क्रिस्टल्स बनाने लग जाता है। अब मेरी एक बात को ना ध्यान से याद करो, हमने पढ़ा था टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर, तब इसमें तो 2 मिनट, जब टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे असर करता है। काइनेटिक एनर्जी समझते हो ना, ये पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, इसके कारण ये घूमते फिरते रहते हैं। तो यानी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, ये भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर को बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं ना एक मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने शुगर डाला, पूरा सैचुरेटेड हो गया, अब और नहीं जा रहा है, अगर मुझे फिर भी और मिक्स करना ही है ना, क्या कर दो, गरम कर दो। क्या कर दो, गरम कर दो। तुमने एक चीज नोटिस की है, तुमने एक चीज नोटिस की है, अब मुझे नहीं पता तुम लोग ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन गरम दूध और ठंडे दूध में अगर तुम थोड़ा ऊपर से चीनी डाल के पीते हो, जैसे हम लोग तो ऊपर से थोड़ा शुगर डाल के पीते दूध में, तो अगर तुम गरम दूध में चीनी डालोगे तो जल्दी घुल जाएगी, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ। लेकिन ठंडे दूध में समय लगता है। क्यों? टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ता है ना तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल दूर दूर आ जाते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर आ जाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल जो है दूर दूर आ गए, और काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हो गई, बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल दूर दूर आ गए, तो इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है तो अब और भी डिसॉल्व हो सकता है। राइट है कि रॉन्ग है? समझो, हीट करते करते इतना कुछ हो गया, इसको भूल जाओ कि कैसे करके हीट करते करते दूर दूर आ गए, तो वो डिसॉल्व तो ज्यादा होगा ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो हम जब भी गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ज्यादा हम लोग घोल सकते हैं, ज्यादा हम लोग घोल सकते हैं। तो एक सवाल, हाउ टू कन्वर्ट अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? कि एक सॉल्यूशन जो सुपर सैचुरेटेड है, अब डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, सॉल्युबिलिटी है ही नहीं, अब उसको मैं अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करूं कि अभी भी मिक्स हो जाए? हीट करके, टेम्परेचर बढ़ा के, हीट करके यानी टेम्परेचर बढ़ा के मैं किसी भी अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉरी सुपर सैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अनसैचुरेटेड में या सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अनसैचुरेटेड सर ऐसा कोई सॉलिड है जिसमें जगह ही नहीं? है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में वो थोड़ी बहुत तो होती है, करिकल बंद हो गया। तो यानी कि तुम क्या समझे कि सॉल्युबिलिटी तो तुम लोग समझ गए, सॉल्युबिलिटी तो तुम लोग हेलो समझ गए कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। और एक जरूरी बात समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या समझे, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और 3 तरीके के सॉल्यूशन हम समझ गए, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब देखो, अब एक बार तो क्या हुआ, मैंने जोश जोश में टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक बार तो क्या हुआ, मैंने जोश जोश में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज्यादा चीजें मिक्स हो गई, गर्म था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो सब कुछ मिक्स हो गया। अब जब वो लिक्विड ठंडा होगा, अब जब वो लिक्विड ठंडा होगा तो बोलो उसकी सॉल्युबिलिटी वापस से कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ। तो वो जो ज्यादा शुगर जो था, जो डिसॉल्व हो गया था, अब उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा था तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या थी, ज्यादा थी, तो ज्यादा मिक्स हो गया। अब जैसे ही वो लिक्विड कूल डाउन हो रहा है, देखो ये पहले वाले वीडियो में बोला था, ये पहले वाले वीडियो के अंत में बोला था, जैसे ही टेम्परेचर कम हो रहा है, लिक्विड कूल डाउन हो रहा है, उसका ये बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण अब वो जो ज्यादा हमने डिसॉल्व किया था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। और वही किस फॉर्म में दिख रहा था, वो कॉटन रॉक कैंडी के फॉर्म में दिख रहा था, क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिख रहा था। किस फॉर्म में दिख रहा था भाई? अब देखो वही वाली बात ना वीडियो में एनिमेशन से समझाई है, वो वाला वीडियो एक बार वापस चला रहा हूँ मैं, पर पूरा नहीं देखेंगे इस बार पूरा नहीं देखेंगे हम लोग, उसका थोड़ा ही पार्ट देखेंगे। ध्यान देना, Today on Sci Guys, ध्यान देना, ये देखो सॉल्युबिलिटी से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस चला है। Some liquids have high solubilities while others have low solubilities. Solubility refers to the amount of a substance called the solute that can be dissolved into a liquid known as the solvent. In most cases, as the temperature of a liquid solvent increases, the solubility also increases. The water experiment starts off at room temperature, and at room temperature, the solubility of the water isn't high enough to dissolve all the sugar that we added into the pot. समझे? रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 25 से 30 When we डिग्री place the सेल्सियस pot के on- बीच का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर माना जाता है, उस पे किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि तुम और ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर सको। पर अगर तुमको और ज्यादा करना है तो On stovetop, the heating element raises the temperature of the water. As the temperature of the water increases, so does its solubility.
And eventually, once the water's at boiling temperature, around 100 degrees Celsius, the एनिमेशन देख रहे हो किस तरीके से, वो जो सुक्रोज है वो शुगर है, शुगर का ही साइंटिफिक नेम सुक्रोज होता है। तो देखो किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो और शुगर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती हेलो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी water solubility is high enough that we're able to dissolve all the sugar into the water. Since we're able to dissolve much more sugar into the water than what can normally be dissolved at room temperature, we're creating a supersaturated solution. Supersaturated solutions are solutions that have a higher amount of solute dissolved into them than can be dissolved under normal conditions. When we leave our solution to cool with a sugar-coated stick in our solution, the temperature of the solution slowly drops back to room temperature. As the temperature drops, the maximum ध्यान देना, अभी तो 100 डिग्री पे गर्म कर रहे थे तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब उसको अगर अब छोड़ दिया तो वो नॉर्मली वापस ठंडा होगा ना, रूम टेम्परेचर पे आएगा ना। तो तुम एनिमेशन देख रहे हो किस तरीके से एक-एक करके सुक्रोज निकल रहे हैं। solubility of the water drops as well. This causes our solution to release sugar molecules, and these molecules form a solid crystalline precipitate. As our solution gets cooler and cooler, it releases more and more sugar molecules. The thing about sugar molecules is that they would prefer to attach to an existing sugar molecule or crystal formation rather than start a new crystal formation. This is where the sugar-coated wood stick comes into play. The sugar on the wood stick attracts the sugar being released from our solution, and they attach together, causing the crystals to grow larger. The sugar समझे? तो टेम्परेचर कम होने पे जो भी शुगर बाहर निकल रहा था तो उन्होंने याद है वो एक स्टिक को शुगर में गोल गोल घुमा के डाला उस था। स्टिक पे वापस चिपक रहा था। हाँ, क्योंकि शुगर जो है वो शुगर में ही जो है चिपक चिपकना जाता है। ज्यादा पसंद करता है, ना कि नया क्रिस्टल बनाना। तो वो एग्जिस्टिंग शुगर जो स्टिक में था उस पे चिपक गया और इस तरीके से sugar on कैंडी the बन गई। stick is known as seed crystals. The crystals on our stick will grow larger and larger as more and more sugar is released from the solution. This process is known as crystallization. The shape of the crystals is specific to the substance. Different substances like alum or salt will create crystal formations of different shapes. To learn about the crystallization of alum and what shape it grows into, watch our earlier video on growing alum crystals. That's it for Rock Candy. Thanks for watching. And if you enjoyed this episode, help तो तुम लोग को क्लैरिटी मिली और ज्यादा? हाँ। बोलो सेकंड टाइम में मुझे लगता है थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी तुम लोगों को, इसलिए दूसरी बार वो दिखाया मैंने। तो हमने टाइप भी समझ लिया, तो लो जी। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन लिमिटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, है ना, इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेंपरेचर, प्रेशर एटसेट्रा। कि भाई कोई पर्टिकुलर टेंपरेचर पे सॉल्युबिलिटी अनलिमिटेड है क्या, कि जितना डालो डलता जाएगा, घुलता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, there is always a limited solubility at a particular temperature or pressure. तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके एडवांटेज क्या है? क्रिस्टलाइजेशन की मेथड से मैंने शुगर अलग किया, देखो याद है हमने वो शुगर सारा एक कैंडी में ले लिया, एक स्टिक में ले लिया। तो एडवांटेज क्या है? फाइन क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड सेपरेटली व्हिच कैन बी कलेक्टेड इजीली। जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, किसी भी चीज के एकदम छोटे से छोटे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जो है इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं और वो सेपरेट इजीली हो सकते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन में केमिकल्स वगैरह नहीं है, इस मेथड में कोई भी केमिकल्स या किसी चीज का यूज नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है ना ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यहाँ पे वेस्ट जो है ज्यादा नहीं आता है। डिसएडवांटेज इसका ये कि बहुत स्लो प्रोसेस है भाई, प्रोसेस बहुत स्लो है, समय लगता है। उन्होंने भी बोला था कि शुगर को अगर सब कुछ वापस देखना है तो तुमको 1 हफ्ता तो वेट करना ही पड़ेगा। तो स्लो प्रोसेस बहुत है, 1 हफ्ता एक कॉटन कैंडी स्टिक बनाने के लिए तो मेरे से तो वेट ना, तो स्लो प्रोसेस है, डिसएडवांटेज है। और हीट करना पड़ता है ना, तो एनर्जी मुझे भी देनी पड़ रही है, हीट देना पड़ रहा है, जिसके कारण अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सैंपल है, मतलब लार्ज क्वांटिटी का सैंपल है, अगर आयन लूनिया अगर लार्ज क्वांटिटी का सैंपल है अगर मेरे पास, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि हीट देना पड़ता है ना। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों काम करना है। देखो, pour the sample in the evaporating disk, turn on the Bunsen burner, boil the mixture till it turns super saturated, as that is the point where you will see salt crystals. सुपर सैचुरेटेड जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को उसको क्या करना है, इवेपोरेट मतलब बंसन बर्नर में रखना है। तो इवेपोरेशन हुआ ये, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, हेलो ध्यान देना, क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, कीप द सॉल्यूशन ऑन अ बर्नर एंड लेट इट बॉयल टिल इट टर्न द सुपर सैचुरेटेड, मतलब क्रिस्टल दिखने लग जाए, फिर टर्न ऑफ द बर्नर, उसको ठंडा होने दो। Meanwhile, prepare the stone and thread and coat it with few sugar crystal. ठंडा जब तक नहीं होता तब तक एक स्टिक को शुगर के आजू बाजू लपेट के वो स्टिक रेडी कर लो, जिसको तुम बाद में सॉल्यूशन में डालोगे, और हैंग इट ऑन द बीकर टॉप विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। वीडियो में भी ब्लू कलर की टूथपिक थी। तो ये
तो क्रिस्टलाइजेशन का ये एप्लीकेशन है, क्राइटेरियन डी का फोकस है, ये है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयाँ वगैरह की, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, फूड बेवरेज इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जहाँ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल चीजें होती है उसको सेपरेशन में भी काम लगता है, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, माइनिंग एंड मेटलर्जी, बहुत सारी जगह पे काम लगता है। चलो जी, तो हम लोगों को क्रिस्टलाइजेशन अब खत्म करना है, ध्यान देना भाई। मुझे पढ़ना है। समझे सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, सी वाटर का इवेपोरेशन कर दो, इवेपोरेशन तो समझते हो हाँ, ना, कर- हीट देंगे तो पानी भाप बन के निकल जाएगा, वाटर वेपर बनकर, पर ये जो सॉल्ट होता है ना वो इम्प्योर होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये सॉल्ट को हमको प्योर करने के लिए कैसे करना पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन भी साथ साथ चलते हैं। देखो भाई, crystallization is the process of formation of large crystals in pure state from their solutions, कि उस सॉल्यूशंस के अंदर जो भी क्रिस्टल के पार्टिकल है वो क्रिस्टल को तुम लोग मतलब क्रिस्टल्स को अलग करना है, तो यानी कि सॉल्यूशन में तो डिसॉल्व फॉर्म में बड़ा सा क्रिस्टल बना दो और उसको फिर क्या कर दो, सेपरेट कर दो, यानी डिसॉल्व फॉर्म से बाहर निकालो, तो वो क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान देना, सिखा के जाएंगे कुछ। जब तक सुपर सैचुरेटेड नहीं हो जाता ना तब तक करते रहना। पता कैसे चलता है कि शुरू से इतना बड़ा और मिक्स ही नहीं हो रहा है। बच्चे की हाइट चाहिए। आवाज बंद हो गई कोई बात नहीं। तो करना आया हैं? Take a stick, नहीं किया ना tie the string to it. देखो हम तो यूज कर रहे थे। बाल है बाल है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग।
वी गो ऑन अ वेकेशन फॉर फ्यू डेज, क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, कितना टाइम लगता है इसमें? टाइम लगता है 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 पर हमने अपने स्टिक में साथ तो कुछ अटैच ही नहीं किया। वहाँ इतना सर बस स्ट्रिंग तो कितनी लाइट होती है। अरे गिरा सिर्फ को लार्ज क्रिस्टल सॉल्ट के स्ट्रिंग पे थोड़ी लगेगी, लगे। स्ट्रिंग पे थोड़ी कुछ डाला होता है सॉल्ट। इन्होंने बताया नहीं, लेकिन हम डालेंगे ना। स्ट्रिंग में समझे कि नहीं समझे? हेलो, हाँ समझे। सेफ्टी रूल्स देखो देखो देखो, अंडर एडल्ट सुपरविजन ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, पर बॉइलिंग वाटर हॉट होता है तो ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बर्न्स हो सकते हैं। सर बहुत ठंडी है। बनाया बंद कर। ध्यान देना, 2 ही मिनट का हेलो। In which ions, atoms, or molecules in a solid, liquid, or vapor arrange themselves into a well-defined, rigid crystal lattice in order to minimize their energetic state. The smallest building block of a crystal is called the unit cell. Many unit cells together form a macroscopic crystal. Crystallization is a critical separation and purification step applied across a broad range of industrial applications, including the pharma, chemical, and food industries. In a single step, crystal product of the desired purity and manufacturing specifications can be created and then isolated. In a liquid or solution crystallization, a solute is dissolved in a solvent, which might also contain undesired impurities. During the crystallization process, the solution experiences supersaturation with respect to the solute. The solute enters the crystal lattice with well-defined angles and dimensions to form a characteristic crystal shape. For example, a cube, needle, or platelet. The impurity is supposed to remain dissolved in the mother liquor so that the pure crystals can be separated from the impurities by a solid-liquid separation step, for example, filtration. However, in an undesired scenario, such as oiling out during crystallization, it is possible that impurities are incorporated into the crystal lattice, which reduces the purity of the crystal product. The crystal purity of the final product is hence a common parameter to assess the quality and effectiveness of the crystallization process. Comprehensive understanding of the crystallization mechanisms is vital to ensure an effective crystallization process can be developed and scaled up to manufacturing. For more information, go to mt.com. चलो, समझ गए पूरा क्रिस्टलाइज? हाँ। बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स थे समझने के लिए हमारे पास, पर हो गया। ये मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। प्रिंट आउट कर दो। नहीं समझना है, घर पे से रीड करोगे ना तो आवाज नहीं, आवाज की जरूरत नहीं है। कोई म्यूजिक था उस पे देखो देखो देखो। छोड़ो ना, जो भी है। चलो 2 बार चला गया होगा। देखो देखो, चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू आर अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड योर टास्क इज टू मेक रॉक कैंडी आउट ऑफ द गिवन जो भी चीजें हैं, तो टू ग्रो कलर्ड शुगर क्रिस्टल एंड टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमारा टास्क है। तो यही है भाई कि किस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं टू सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, है ना। अब इसका हाइपोथेसिस क्या होगा कि आई प्रेडिक्ट दैट क्रिस्टल्स विल फॉर्म व्हेन द शुगर सॉल्यूशन इज लेफ्ट टू कूल डाउन स्लोली, और हीट करोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और सॉल्ट पीछे पीछे रह जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द मेथड क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड को सेपरेट कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं ना वो लिक्विड से सेपरेट हो जाते हैं बाय स्लोली कूलिंग अलाउइंग क्रिस्टल टू फॉर्म, और इवेपोरेशन से सीधे हीट देके सॉल्वेंट गायब कर देते हैं और सॉल्यूट रह जाता है। समझते हो ना?
कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सल्यूट को अलग कर लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट में से क्रिस्टल के फॉर्म में, और इवेपोरेशन में तो सॉल्वेंट को ही गायब कर देते हैं, यानी वाटर ही जो है वो वाटर वेपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वेरिएबल यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, हीट शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है, किस तरीके से, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा, कितना क्रिस्टल बना है या कितना रेसिड्यू बचा है अगर इवेपोरेशन है तो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंटेनर की साइज, एनवायरनमेंट, मतलब टेंपरेचर, प्रेशर लिखना ज्यादा बेटर होगा, वो कांस्टेंट रखना, ध्यान देते रहो भाई। रिक्वायरमेंट देख लो, बीकर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन तो हीट सोर्स, स्ट्रिंग एंड स्टिक, मेजरिंग सिलेंडर, सेफ्टी गॉगल्स। फिर यहाँ पे सेफ्टी मेजर है, हैंडल हॉट इक्विपमेंट केयरफुली, वेयर गॉगल्स व्हाइल हीटिंग, डू नॉट टेस्ट द केमिकल्स, और हेलो वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। फिर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसीजर प्रॉपर अटायर वो नहीं लिख सकते, वो नहीं, क्यों? वो पहले ही होता है, वो पहले। वेल वेंटिलेटेड एरिया, हवा वगैरह बाहर चलती से रहती है। विंडो खुली होनी चाहिए। हाँ चलो देखो, हेलो वापस बातें चालू हो रही है तुम लोगों की। क्रिस्टलाइजेशन में क्या प्रोसीजर है, देखो, बॉयल द सॉल्यूशन टिल इट हैज टर्न सुपर सैचुरेटेड। क्रिस्टलाइजेशन में तो यही था कि सॉल्यूशन को कब तक बॉयल करना है, जब तक वो सुपर सैचुरेटेड नहीं हो जाता है। उसके बाद pour an equal amount of sugar solution into the beaker, tie a string to a stick and place it so the string hang in the solution, leave the setup undisturbed in a warm area for a few days, observe and record the crystal formation daily। evaporation तो एकदम सिंपल है भाई, ध्यान देने वाली बात है। हाँ, evaporation तो एकदम सिंपल है कि pour salt solution in a dish, place the dish in a hot plate all in sunlight, allow the water to evaporate completely or observe and record the salt crystals residue left behind। ये देखो इस तरीके से इन लोगों तो तुमको खुद से करके पता चलेगा। इंटरप्रेट द डेटा एंड आउटलाइन द रिजल्ट। तो क्रिस्टल जो है वो शुगर सॉल्यूशन से बने हैं, वो कंफर्म करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, और हीटिंग करने पे जो है सिर्फ सॉल्ट पीछे रह गया और पानी इवेपोरेट हो गया, जो कंफर्म करते हैं इवेपोरेशन हुआ है। सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग, ये सारी चीजें जो है ये रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, हमने बोला था शुगर बनेगा, क्रिस्टल्स बनेंगे, वो वैलिड है ना। मेथड की वैलिडिटी, तो मेथड भी वैलिड है। स्ट्रेंथ ये है कि प्रोसीजर इजी टू फॉलो है, प्रिसाइज रिजल्ट है। और वीकनेस है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन को लंबा समय लगता है और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, डस्ट, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है प्रोसेस को। इंप्रूवमेंट इसके क्या है भाई, कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखना, कंट्रोल एनवायरनमेंट रख सकते हैं, क्लोज बॉक्स रख सकते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, और फिल्टर्ड सॉल्यूशन यूज करो जिससे ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो देखने मिले। और एक्सटेंशन में मैंने क्या बोला था, सीवी को क्या बना दो, आईवी बना दो। प्लीज बाहर जाना हो तो अभी फिर एक्सटेंशन में क्या बोला था, सीवी को क्या बना दो, आईवी बना दो। भाई सीवी क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, तो उसी की बात कर लो कि किस तरीके से टेम्परेचर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे क्रिस्टल फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। या फिर दूसरा सब्सटेंस, शुगर सॉल्यूशन था ना, अब दूसरा सब्सटेंस ले लो, एलम ले लो या कुछ ले लो करके। क्लियर हुआ सर पर सीवी तो